हरि ओम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। So today, after a long time, so we are again back to classics to clinics. So today we will be discussing about how to understand and how to implement the knowledge of Swatantra and Paratantra dosha prakopa in clinic. And how you should understand that the given patient is a Swatantra Vyadhi or Paratantra. So before that, we'll go into the classics and we'll see all the references which are explained in Charaka, Sushruta and Vagbhata. So first we have to go to the classics, then we shall go to the clinical aspect. And at the end, I will share some of the cases where we decided that whether it is a Swatantra Vyadhi or Paratantra Vyadhi. So, as you all know, that all the Nija Vyadhis which manifest are due to the dosha only. Without dosha, there is no Vyadhi, isn't it? So, they have also given a simile that the Pakshi which is flying in the sky cannot control its, the chaya, isn't it? So, धरती पर उसका छाया पड़ना ही है। उसी तरह जो भी व्याधि है वो दोषों के बिना नहीं हो सकते। इवन द अभिघात आदि जो व्याधि होते हैं वो भी कुछ समय के बाद दोषज ही हो जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। So without dosha there is no manifestation of any Vyadhi. So even the Agantuja Vyadhis become doshaja in due course of time. So how these doshas get vitiated? You all know that samana gunabhyaso hi धातूनाम वृद्धि कारणम। समान गुण के द्रव्यों का सतत या कंटिन्यूअसली आप उपयोग करते हैं तो उस दोष का प्रकोप हो जाता है। And there is one shloka in Charaka only, exactly I forgot the reference. Viparita gunair desha matra kalopapaditaihi. You know, anyone knows the reference? Beshajair vinivartante vikara sadhya sammata. That viparita gunair deshai matra kalopapaditaihi beshajahi vinivartante vikara sadhya sammata. साध्य व्याधि वो है जो विपरीत गुण के द्रव्यों के उपयोग से शांत होते हैं, isn't it? भी कफज विकार हो गया पेशेंट को तो कफ के 62 okay, हाँ, चरक सूत्र स्थान first chapter. In that you get this shloka number 62. So viparita gunair desha kala desha matra kalopapaditaihi. So all these chikitsa of the curable diseases, that is which are sadhya, are done by the dravyas which are having the opposite qualities of the dosha, isn't it? So this is true only in case of some Swatantra Vyadhis. This shloka holds good there. So there are so many diseases which occurs to the patients without their knowledge, isn't it? Without the proper indulgence of that particular dosha. तो उनको कैसे देखना है तो आगे हम देखेंगे। So जब भी हम दोष प्रकोप की बात करते हैं, so we always think that there is particular hetu for that, isn't it? So if there are 80 types of Vata Vyadhis, Nanatmaja Vikara is what Acharya has told. Whether it may be 80 types of Vataja, Nanatmaja, or 40 types of Pittaja, or 20 types of Kafaja, Nanatmaja Vyadhis. So all these Vyadhis are explained when there is dosha prakopa with respect to that particular hetu, isn't it? So 80 types of Nanatmaja Vyadhis occur when you indulge in the such kind of hetus. वात के हेतुओं का सतत तरीके से उपयोग करने से वो वातज व्याधि होते हैं. So these Nanatmaja Vyadhis are also true in case of
swatantra dosha prakopa, isn't it? And one more thing, when you come towards the in the Ashtanga Hridaya first chapter, what he has explained, Tatra Adya Marutam Gnanti Trastikta Kafa. So this statement, that is Madhura Amla Lavana, are used in the treatment of Vata. Tatra Adya Marutam Gnanti Trastikta Kafa, Kashaya, Katu, Tikta. All these things are, all these three rasas are used in the treatment of Kapha. Kashaya Tikta Madhura Pitta Manyam tu Kurvate. So that is Kashaya, Tikta and Madhura Rasa. These three are used in the treatment of Pitta. So like that, so whatever explanation is explained in that context, that is also true for the in case of Swatantra Dosha Prakopa only, isn't it? So there is Swatantra, that is Swatantra Paratantra क्या है वो देखेंगे. Just I am giving you a brief introduction about the Swatantra and Paratantra. So, but in many times what happens, these dosha prakopa may happen without that direct indulgence in the hetus of that particular dosha. तो कुछ ऐसे व्याधि है जो कोई हेतु सेवन ही नहीं किया है पेशेंट ने, फिर भी होते हैं, तो उनका निदान कैसे करना है हमें, that we'll see. For example, let us take a patient who comes to you with the complaining of Vata Vyadhi. Okay, so it may be a Gridrasi, it may be a Manyastamba, or whatever the Vataja Vikaras. He comes to you. When you examine, you may not find the particular hetu which has triggered or which might have triggered the Vata, isn't it? So in such cases, if we start the treatment of that Vata by using Ushna, Tikshna, or Snigdha, Madhura Rasa, so the opposite qualities, then you may land up in complications if you are not examining properly the hetu which might have triggered that Vata Prakopa. So in such situations, it's very important to understand what might have caused the Vata Prakopa, even though patient is not directly involving in the Vata Prakopa ka hetus. So first let's understand what is this Swatantra and Paratantra Dosha Prakopa. For that you open Charaka Vimanasthana 6th chapter. Charaka Vimana 6, Shloka number 11. The shloka is Tatra Anubandhya Anubandha Kruto Visheshaha Swatantro Vyaktalingo Yathokta Samuthana Prashamo Bhavati Anubandhyaha Tad Viparita Lakshana tu Anubandhaha Anubandha Lakshana Samanvita Tatra Yadi Dosha Bhavanti Tatrikam Sannipatam Achakshate. Let it be. We are not going into that. The first two lines. Tatra Anubandha Kruto Visheshaha Swatantro, isn't it? So, and the similar reference you may get in Ashtanga Hridaya Sutrasthana 12th chapter. Okay, the same shloka. If you want to see, you can see later. The shloka is Atha Swatantran Lakshayati Yatha Swajanma Upashayaha Swatantraha Spashta Lakshanaha. Ashtanga Hridaya Sutrasthana 12th chapter, shloka number 63. So based on this, the स्वतंत्र व्याधि उसको अनुबंध्य भी कहते हैं, स्वतंत्र को अनुबंध्य भी कहते हैं, एंड परतंत्र इसको अनुबंध कहते हैं. Okay, so the disease which manifests by its own symptoms independently, so that is called as, that condition is called as the specific हेतु होते हैं, तो उसको हम स्वतंत्र कहते हैं और इसको अनुबंध्य भी कहा जाता है. For example, if the Vata is vitiated by its own hetus, for example, continuous usage of Ruksha, Parusha, Laghu, Shita, etc. हेतुस, अभी हम जो भी चैप्टर ओपन करते हैं तो उसके हेतुस में वात, अभी समझो वातज उन्माद पढ़ रहे हैं, तो वातज उन्माद के हेतु में यही तो रहता है, रूक्ष, लघु, कठिन, स्थिर, isn't it? So all these things,
तो ये सिर नहीं कफ का है। ये हेतु जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्वतंत्र दोष प्रकोप के हेतु है। तो आचार्य कहते हैं ऑल द डिसीजेस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द दिस स्वतंत्र परतंत्र ओनली। तो उसमें कंटिन्यू होके कहते हैं एवं व्याधीनां स्वतंत्र परतंत्रत्वं प्रतिपाद्य दोषाणां प्रतिपद्यन्नाह विद्यादेवं मलानपि। तो सभी व्याधियों को स्वतंत्र और परतंत्र के दोष के आधार पर ही आपको चिकित्सा करना चाहिए और उसका हेतु निदान करना चाहिए। ओके, तो यही दोष का ही मल को भी अप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये धातुओं को भी अप्लाई होता है। ठीक है, so this explanation is applicable for all the diseases, so you have to understand it. So let's go to some examples in the shastra जो स्वतंत्र दोष प्रकोप के हेतु है उनको देखेंगे। उसके बाद में हम परतंत्र दोष प्रकोप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। So let's open चरक सूत्र स्थान 17 chapter 17 chapter श्लोका नंबर 30। चरक सूत्र 17 मिला कियंत शिरसि अध्ययन। Can anyone read? हृद्रोग निदान शोक उपवास व्यायाम रूक्ष शुष्काल्प भोजनैः वायुराविश्य हृदयं जनयेत् उत्तमां रुजाम्। यस, तो ये जो हेतु आप देख रहे हैं, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, तो दिस इज अबाउट द वातज हृद्रोग। तो ये वातज हृद्रोग कैसे होता है, तो इसके लिए उन्होंने शोक उपवास व्यायाम रूक्ष शुष्क अल्प भोजन ही वायुराविश्य हृदयम जनयत उत्तमम रुजाम। तो ये पेशेंट शोक में इंडल्ज्ड है, उपवास ज्यादा कर रहा है, व्यायाम रूक्ष शुष्क अल्प भोजन, तो ऐसे हेतुओं का सेवन करता है तो उसका वात प्रकोप होता है और वो हृदय में आश्रय लेकर वातज हृद्रोग करता है। तो वायु आविश्य हृदयम का एक्सप्लेनेशन हमने वात प्रकोप का क्लास में देखे। तो वायु आविश्य हृदयम बोले तो वायु पहले हृदय में नहीं था क्या, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आप फिर वो वीडियो देखिए और एक बार। तो शोक उपवास व्यायाम ये सभी हेतुओं का करने से जो वात प्रकोपित हुआ है वो हृदय में आकर आश्रय लेगा और हृद्रोग करेगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है तो ये स्वतंत्र दोष प्रकोप का है। ओके, तो ऐसे ही उसके बाद पित्तज हृद्रोग का भी, ये सारे जो बताए हैं ये स्वतंत्र दोष प्रकोप के हेतु है। उसके बाद दूसरा और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम चरक निदान स्थान में। चरक निदान फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ज्वर निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर श्लोका नंबर 19 19। पेज नंबर 199 20 का। रूक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरोविरेचन अतियोग व्यायाम वेग संधारण अनशन अभिघात व्यवाय उद्वेग शोक शोणितातिशेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्यो अतिसेवितेभ्यो वायु प्रकोप आपद्यते। तो ये वातज ज्वर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोष प्रकोप हो रहा है उसका हेतु क्या है, रूक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन का अतियोग, इजंट इट, वेगों का धारण करना, अनशन करना, अभिघात करना, उद्वेग, ये सारे हेतु जो है ये वात के अपने हेतु है। तो वात के अपने हेतु, इट्स ओन हेतु, इजंट इट, ये हेतुओं से वात प्रकोपित होता है, आपने देखा है, इजंट इट। तो वात कलाकले में हमने देखे, तो इसके ये हेतु है, पित्त के ये हेतु है, कफ के ये हेतु है, हमने देखा है ना।
तो वो हेतुओं से अगर दोष प्रकोपित हो रहा है अपने खुद के हेतुओं से, तो वो स्वतंत्र दोष प्रकोप है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, ये और एक एग्जाम्पल हो गया। इसी में देखिए नेक्स्ट पित्त जो ज्वर का भी होता है, श्लोका नंबर 22, नेक्स्ट पेज नंबर 200 पे। उष्णाम्ल लवण क्षार कटुकाजीर्ण भोजनेभ्यो अतिसेवितेभ्यः तथा तीक्ष्णातापाग्नि संताप श्रम क्रोध विषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते। पित्त का प्रकोप हो रहा है, उष्ण, आम्ल, लवण, क्षार, कटु, ये सारे हेतु कैसे है? पित्त के अपने हेतु है, isn't it? तो इसीलिए इनके सेवन करने से पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो वो स्वतंत्र पित्त प्रकोप कहते हैं इसको। ठीक है, अभी श्लेष्मा का भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज पे इधर बगल में है 25th श्लोका, स्निग्ध गुरु मधुरा पिच्छिला, isn't it? तो ऐसे आहार विहार का सेवन करने से श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर स्वतंत्र दोष प्रकोप। ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। अभी आप निकाले चरक निदान स्थान 3rd चैप्टर अगेन, तो 3rd चैप्टर में भी एक एग्जाम्पल देंगे आपको। श्लोका नंबर 6, गुल्म निदान में। पुरुषो हाँ, यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम् अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितो वातलम् आहारम् आहरति शीतं वा विशेषेण अतिमात्रम् अस्नेहपूर्वे वा वमन विरेचने पिबति अनुदीर्णां वा छर्दिम् उदीरयति उदीर्णान् वातमूत्र पुरुष वेगान् निरुणद्धि अत्यशितो वा पिबति नवोदकम् अतिमात्रम् अतिसंक्षोभिणा वा यानेन याति अतिव्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचिर्वा अभिघातं पृच्छति वा विषमासन शयन स्थान संक्रमण सेवी वा भवति अन्यद्वा किंचिदेवं विधं विषमम् अतिमात्रं व्यायामजातम् आरभते तस्य अपचाराद् वातः प्रकोपमापद्यते। देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने वात के प्रकोप के हेतु यहाँ बताया गुल्म निदान में। हाँ, तो ये सारे हेतुओं को करने से ये सभी वात के अपने खुद के हेतु है। हाँ, इट्स ओन हेतु, इट्स ओन ऐसे लक्षणों का वृद्धि होता है ना, वात के खुद के रूक्ष, लघु, स्थिर, कठिन, ऐसे लक्षणों की वृद्धि होने से ये वात प्रकोप हो रहा है, तो इसलिए ये वात के खुद के हेतु। इसमें एक इम्पोर्टेंट देखिए आप, वमन विरेचन का, अस्नेह पूर्वे वा वमनम विरेचन पिबती, स्नेहन के बिना वमन विरेचन करते रहते हैं खुद ही अपने आप। कुछ लोग होते हैं उन्होंने ये योग के क्रियाओं का, नवली धोतियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, दे डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद ही 1-2 ग्लास पानी पिएंगे और वोमिट कर लेंगे। तो महीने में, अब हफ्ते में 1 बार करेंगे, कुछ ही अपने नमक वाला पानी पिएंगे, वोमिटिंग कर लेंगे। तो ये क्या है, अस्नेह पूर्वक वमन विरेचन, या कोई पूर्व कर्म के बिना ही वमन विरेचन, दोष उत्क्लेश के बिना ही वमन विरेचन करते रहते हैं। सो इन सच केसेस देयर विल बी वात प्रकोप, बिकॉज स्रोतस में रूक्षादि गुणों की वृद्धि होती है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, isn't it? तो स्रोतस में रूक्षादि गुणों की वृद्धि होने से ये वात के प्रकोप के कारण होते हैं। और एक आप इंपॉर्टेंट देखिए इसमें, अनुदीर्णम वा छर्दिम उदीरयति, छर्दी वेग नहीं है उनको, फिर भी वो छर्दी के वेग को लाते हैं। आप देखते हैं आपके अगल बगल के घर में कितने लोग सुबह सुबह लगे रहते हैं, हाँ, उंगली डाल के वोमिटिंग करते रहते हैं, isn't it? तो दिस इज अनुदीर्ण वेगा, वेग नहीं है उधर छर्दी का, फिर भी वोमिट कर लेंगे खुद से, पेट साफ कर, पित्त निकालेंगे, बोलते हैं ना पित्त निकाल रहे हैं हम अपना। तो दिस इज व्हाट इज अनुदीर्ण वेगों का उदीरण करने से उनको गुल्म हो सकता है, वहां पर वात प्रकोप होगा। कोष्ठ स्थान में, अगर वो कोष्ठ में महास्रोतस में अगर खवैगुण्य हो गया, वहां पर वात प्रकोप हो गया, तो वो गुल्म का हेतु बनता है। ठीक है, मेरे पास इतने पेशेंट मैंने देखा है,
उनमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम वॉमिटिंग कर लेते हैं सुबह उंगली डाल के। अगर कोई भी उदावर्त का रोगी है, पेशेंट है, एब्डोमेन पेन का पेशेंट है, तो उसमें हेतु मिलता है। तो वो लोग अनुदीर्ण वेग को उदीर्ण करके वॉमिटिंग करते रहते सुबह सुबह। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हेतु। ये वात के अपने खुद के हेतु है, इसलिए ये स्वतंत्र दोष प्रकोप है। और एक लास्ट देखेंगे स्वतंत्र का। ऐसे बहुत अगर देने बैठेंगे तो हर चैप्टर में इसके स्वतंत्र और परतंत्र के एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। लास्ट एक देखिए नेक्स्ट चैप्टर में प्रमेय निदान में श्लोका नंबर 36, पेज नंबर 215। कषाय कटुतिक्त रूक्ष लघु शीत व्यवाय व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग संधारण अनशन अभिघातातप उद्वेग शोक शोणितातिसेक जागरण विषम शरीर न्यासान उपसेव्यमानस्य तथाविध शरीरस्य एव क्षिप्रं वातः प्रकोपम् आपद्यते। तो ये प्रमेय का हेतु है। तो इसमें भी आपको स्वतंत्र वात प्रकोप के हेतु मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। तो वी जनरली गेट द प्रमेय पेशेंट्स ऑफ सूत्रस्थान चरक में जो बताया है, ऐसे पेशेंट ज्यादा मिलते हैं हमें। तो ये जो डायरेक्टली ऐसे आजकल जो मिलने वाले सारे प्रमेय, लगभग सारे प्रमेय, अराउंड 90% यू कैन से, सो ऑल दे आर परतंत्र दोष प्रकोप ओनली। स्वतंत्र ऐसे हेतु करके प्रमेय होके हमारे पास ज्यादा नहीं आते। तो फिर भी ये देखिए, कषाय कटुतिक्त रूक्ष शीत व्यायाम व्यवाय, ये सभी करने से उपसेव्यमानस्य तथाविध शरीरेषु क्षिप्रम वात प्रकोपम आपद्यते। यहाँ पर यथाविध शरीर एवं, इसका मतलब क्या है? ऐसे शरीर में, मतलब जो शरीर रूक्ष हुआ है, जो शरीर लघु हुआ है, कठिन हुआ है, जिसके स्रोतस में रूक्षादि गुण, रूक्ष लघु खर शीत परुष, ऐसे गुण ज्यादा बड़े हैं, तो ऐसे शरीर, इसका मतलब, ओके, अंडरस्टैंड। तो ऐसे में वात क्षिप्रम वात प्रकोप में आपद्यते, ऐसे व्याधि, ऐसे पेशेंट्स में वात का प्रकोप क्षिप्र रूप से हो जाता है। So this is about the some of the examples of स्वतंत्र दोष प्रकोप इन शास्त्र। तो अभी कुछ ऐसे भी व्याधि है जिनका हेतु खुद के नहीं है, फिर भी वो एक व्याधि का उत्पन्न कर रहे हैं, वो दूसरा व्याधि होता है। तो कुछ ऐसे व्याधि है जिनके हेतु अलग है लेकिन व्याधि अलग हो रहा है। ऐसों का आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आज अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, 4-5 एग्जाम्पल देखे, जो ऑल आर खुद के हेतु थे। So all the sampraptis till now what we have seen, they are of this that particular dosha prakopa. The hetus are, अगर पित्त प्रकोप हो रहा है तो उसके हेतु कटु, लवण, आम्ल ऐसे हैं। अगर वात प्रकोप हो रहा है तो उसके हेतु रूक्ष लघु शीत ऐसे हैं। So because of that particular hetu, the dosha is getting vitiated, that is called as स्वतंत्र दोष प्रकोप। आगे हम देखेंगे परतंत्र दोष प्रकोप किसको कहते हैं। तो परतंत्र का मतलब क्या है? जो डिपेंडेंट है वो, isn't it? परतंत्र अभी पराश्रित है वो हेतु, वो संप्राप्ति करने के लिए उसके खुद के हेतु नहीं है उसके पास। तो उसको हम कहेंगे परतंत्र दोष प्रकोप। तो ये एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो विल गो टू द अगेन चरक सूत्र स्थान, द सेम चैप्टर फ्रॉम वी हैव स्टार्टेड 17 चैप्टर। देखिए कियंत शरसीय में श्लोका नंबर 80। हम्म 78 से पढ़ो। गुरु स्निग्ध चरक सूत्रस्थान चैप्टर 17। गुरु स्निग्धाम्ल लवणानि अतिमात्रं समश्नतां नवमन्नं च पानं च निद्राम् आस्य सुखानि च त्यक्त व्यायाम चिन्तानां संशोधनम् अकुर्वतां श्लेष्मा पित्तं च मेदश्च मांसं च अतिवर्धते तैरावृत गतिर्वायुरोज आदाय गच्छति
यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते। स मारुतस्य बस पित्तस्य कफस्य च हाँ। हाँ हाँ, अभी देखिए इसके हेतु देखिए, गुरु स्निग्ध आम्ल लवण, हाँ, इसके अतिमात्रा के सेवन करने से, नव अन्न खाने से, निद्रा, हास्य सुख, त्यक्त व्यायाम, उसको कोई व्यायाम नहीं करता, त्यक्त चिंता, उसको कोई चिंता नहीं, बहुत सुखी है, संशोधनम अकुर्वताम, कोई संशोधन नहीं करता वो, ऐसे पेशेंट में क्या हो रहा है, ये हेतु किसके है, श्लेष्मा के हेतु है, ठीक है। तो श्लेष्मा के हेतु से क्या हो रहा है, श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते, ये श्लेष्मा बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, मेद बढ़ेगा, ये सब बढ़ेंगे, इनके बढ़ने के कारण तैर आवृत गतिर, ऐसे धातुओं की आवरण से, वायु के अपने मार्ग का आवरण होने से, ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते, स मारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः दर्शयति आकृतिम गत्वा क्षयम आपद्यते पुनः। तो यहाँ पर वात का व्याधि हो रहा है, मधुमेह क्या है, वातज है, इवन तो वातज मधुमेह तो हो रहा है, लेकिन उसके हेतु क्या है, गुरु स्निग्ध, दिवा स्वप्न, अति आसन, चिंता नहीं है, अशोधन, तो ये सभी कफ के हेतु है। कफ का प्रकोप होना चाहिए तो उस जगह पर वात की व्याधि उत्पन्न हो रहा है, isn't it? तो ऐसे दोष प्रकोप जो है इसको परतंत्र कहेंगे। इसमें व्याधि का चिकित्सा क्या करेंगे आप, वात का शमन के लिए मधुर स्निग्ध देंगे क्या, नहीं दे सकते आप। इसके लिए स्नेहन करेंगे क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे परतंत्र दोष प्रकोप, isn't it? इसके खुद के हेतु नहीं है वात के, लेकिन वात व्याधि हुआ है, वात के खुद के हेतु नहीं है पर वात का व्याधि हुआ है, तो उसको कहेंगे परतंत्र दोष प्रकोप। समझ रहे आप? तो आजकल हम जो पेशेंट हमें देखने को मिलता है क्लिनिक्स में जो डायबिटीज के है, वो ये संप्राप्ति है, ठीक है, वो प्रमेह चैप्टर में देखने जाएंगे, मिलता नहीं, ये सूत्रस्थान में ही है वो। तो ऐसे कंडीशन को हम आज ट्रीट कर रहे हैं। तो आज के हेतु यही है ना। आप देखिए कितने पेशेंट आपको ये हेतु वाले डायबिटीज मिलेंगे, वो भी मिलते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे हेतुओं का चिकित्सा करने के लिए आपको चाहिए, आप त्रिकटु दे सकते हैं, पंचकोल दे सकते हैं, चित्रक दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को उष्ण और वात का विपरीत चिकित्सा, यहाँ पर कफ शमन करेंगे तो वात भी शमन हो जाएगा, तो क्योंकि ये परतंत्र है। उसके बाद देखिए ज्वर चिकित्सा, चरक चिकित्सा, 3rd चैप्टर, श्लोका नंबर 'चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा' निकालो। श्लोका नंबर 114, पेज नंबर 407। काम शोक भय क्रोधैर अभिषक्तस्य यो ज्वरः सो अभिषंगाज्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिषंगजः। तो यहाँ पर काम शोक भय क्रोध अभिषक्तस्य यो ज्वरः, जो ज्वर काम क्रोध तो शोक ऐसे हेतुओं से आता है तो उसको अभिषंगज ज्वर कहते हैं, isn't it? तो ये भूताभिषंगज ज्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर दोष पित्त को प्रकोप कर रहा हो, वात को प्रकोप कर रहा हो, ऐसा नहीं मिलता आपको। फिर भी वहां पर ज्वर की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर हेतु नहीं है जो पर्टिकुलर दोष को प्रकोपित कर रहा हो। तो इसीलिए ऐसे अभिषंगत ज्वर को हम परतंत्र दोष प्रकोप कहेंगे, क्योंकि
वात के अपने चिकित्सा करने से, पित्त के अपने की चिकित्सा करने से या कफ की चिकित्सा करने से यहाँ पर दोष शमन नहीं हो रहे, यहाँ पर ज्वर की चिकित्सा नहीं हो रहा है। इसके लिए अभिसंग ज्वर का चिकित्सा अलग बताया। तो इसीलिए ये परतंत्र दोष प्रकोप का एग्जाम्पल है। और एक देखिए आप ग्रहणी चिकित्सा निकालिए चैप्टर 15। बहुत एग्जाम्पल से पटपट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसको एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाना पड़ेगा। मैं ऐसा ही प्रवचन देंगे तो समझ में नहीं आएगा। निकालिए 42, श्लोका नंबर 42, ग्रहणी चिकित्सा, पेज नंबर 517। अभोजनाद अजीर्णाति भोजनाद विषमाशनात् असात्म्य गुरुशीतातिरुक्ष संदुष्ट भोजनात् विरेक वमन स्नेह विभ्रमादिकर्षणात् देश काल ऋतुवैषम्याद वेगानां च विधारणात् दुष्यत्यग्निः स दुष्टो अन्नं न तत्पचति लघ्वपि अपच्यमानं शुक्तत्वं यात्यन्नं विषरूपताम्। हाँ, उसका नेक्स्ट एक लाइन पढ़िए, तस्य लिंगम अजीर्ण, तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भः सदनं तथा शिरसोरुक्च मूर्छा च भ्रमः पृष्ठकटिग्रहः जृम्भाङ्गमर्दतृष्णा च ज्वरश्चर्दिः प्रवाहणम् अरोचको अविपाकश्च घोरम अन्नविषम च तत् संसृज्यमानं। अभी देखो यहाँ पर हेतु देखिए, अभोजन, अजीर्ण, अतिभोजन, विषमाशन, असात्म्य गुरुशीत संदुष्ट भोजना। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर हेतु नहीं मिलता आपको। विरेक वमन स्नेह विभ्रम, ये सारे हेतु जो है ये अजीर्ण के हेतु है। तो इनके वजह से व्याधि क्या उत्पन्न हो रहा है? शिरोरुक, सदन, विष्टब्द, पृष्ठकटिग्रह, मूर्छा, भ्रम। तो ये ऐसे व्याधि उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर कटिग्रह के लिए कोई पर्टिकुलर दोष का प्रकोप नहीं है। यहाँ पर दोष प्रकोप अजीर्ण की वजह से हो रहा है। यहाँ पर दोष प्रकोप आम की वजह से हो रहा है। जो आम विषरूपता को अटेंड किया है, ऐसे विषरूपता की वजह से यहाँ पर दोषों का प्रकोप हो रहा है। आप दोषों की चिकित्सा करने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। आप चिकित्सा किसकी करना है? यहाँ पर साम की, आम की चिकित्सा करना है, अजीर्ण की चिकित्सा करना है, आमाशय की चिकित्सा करना है। समझ रहे? तो अगर आप यहाँ पर मध्यम रोग मार्ग की चिकित्सा क्या करने, मतलब पोस्ट की चिकित्सा यहाँ पर करना है, अभ्यंतर की चिकित्सा करना है, अगर आप अस्थि संधि के व्याधि है समझ के उसकी चिकित्सा करने जाएंगे तो होगा नहीं। तो ये आम है। तो ये परतंत्र दोष प्रकोप है यहाँ पर। समझ रहे? आप आगे भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये यही देखिए आप, इसी में देखिए, असृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयन शयने ताम्ल पित्तम च पित्तजंश परान गदान। तो यहाँ पर पित्त का हेतु सेवन नहीं किया है पेशेंट ने, ये अजीर्ण का हेतु है। अजीर्ण की वजह से उसको आम्ल पित्त हो रहा है। अभी आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं आम्ल पित्त के, एग्जाम्पल सिंपल है, आगे पेशेंट आके बोलेगा आम्ल पित्त के लक्षण बोलेगा, लेकिन आप जब देखेंगे उसको, एग्जामिन करेंगे, आप हेतु निकालेंगे तो सारे कफ के हेतु देगा वो। ऐसे हुआ है बहुत बार। पेशेंट आएगा और आप हेतु निकालने बैठेंगे, वो सुबह 9 बजे उठ रहा है, वो दोपहर में भी सो रहा है, वो दूध पीता है, वो काजू बादाम खाता है, और उसका व्याधि क्या है? पित्त है, आम्ल पित्त हुआ। तो उसका आम्ल पित्त है समझ के अगर आप उसको फिर पित्त शमन करने बैठेंगे, मुक्ता देंगे, शुक्ति देंगे, कामदुदा देंगे, तो होगा नहीं। ऐसे कंडीशन में यू हैव टू स्टार्ट विद द दीपना, कुछ दीपन और पाचन करना पड़ेगा, उसमें कुछ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य देने पड़ेंगे, उसके अग्नि उद्दीपन करना पड़ेगा, उसके बाद उसका आम्ल पित्त शमन होगा। तो लाइक दैट इफ यू स्टार्ट द पित्त ट्रीटमेंट यू मे नॉट गेट द सक्सेस। तो इसीलिए ये परतंत्र दोष प्रकोप है। ये दोष अगर मूत्र में जाएगा तो मूत्र के व्याधि करेगा, यही आम अगर रक्त में जाएगा तो रक्त के व्याधि करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर लास्ट में देखिए, करोति वात संसृष्टम वातजांश गदान बहून मूत्र रोगांश मूत्रस्थम कुष्ठी रोगांश शकृद्गतम।
रसादिभिश्च संसृष्टम कुर्यात् रोगम रसादिजान। तो यहाँ पर ये आम जहां जहां जाएगा वहां के व्याधि उत्पन्न करेगा, तो ये परतंत्र है। अब नेक्स्ट देखिए चरक विमानस्थान सेकंड चैप्टर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। श्लोका नंबर 7 देखो, चरक विमान चैप्टर 3 श्लोका 7। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत एक 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं ऊपर से। खाना खाया तो तृप्ति हो जाती है, उनको पानी पीने से तृप्ति मिलता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, लेकिन आगे जाकर उनको अजीर्ण की, आम की, अग्निमांद की बहुत सारी तकलीफें होते रहते हैं। तो वही श्लोक है यहाँ पर देखिए चरक विमान स्थान। इसमें बीच में एक लाइन आएगा देखो, यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम। अतिमात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपण, अदाद्मेಲೆ नेक्स्ट है 7th लाइन। हाँ, यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सौहित्यम गत्वा द्रवे तृप्तिमापद्यते भूयस्तस्य आमाशयगता वातपित्त श्लेष्मणो अव्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानः सर्वे युगपत् प्रकोपम आपद्यन्ते। तो जो भी खाना खाने के बाद द्रव से तृप्ति करता है, द्रव आहार से तृप्ति करता है। अभी मूर्त आहार लिया, मतलब मूर्तानाम आहार जाता मतलब मूर्त आहार, मतलब घन आहार का खाना खाया, उसके बाद तुरंत वो द्रव से तृप्ति कर रहा है, पानी बहुत पी रहा है, जल का बहुत ले रहा है। तो ऐसे पेशेंट में क्या हो जाएगा, द्रवे तृप्तिमापद्यते भूयस्तस्य आमाशयगता वातपित्त श्लेष्मणो अव्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानः सर्वे युगपत् प्रकोपमापद्यते। तो ऐसे पेशेंट में तीनों दोष सडनली प्रकोपित हो जाते हैं। यहाँ पर तीनों दोष का हेतु नहीं कर रहा है वो पेशेंट, फिर भी तीनों दोष प्रकोपित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परतंत्र दोष प्रकोप है। ऐसे पेशेंट्स में क्या हो जाता है, तीनों दोष युगपत् प्रकोपित हो जाते हैं। तो इसीलिए पेशेंट्स को बताना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, 45 to 50 मिनट्स छोड़ के ही पानी पीना है। अगर आपको बहुत पानी पीने का मन करता है तो थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, कुल्ला करने लायक पानी आप पी सकते हैं। ऐसे आपको पेशेंट को एडवाइस करना है। तो इफ नॉट देयर विल बी त्रिदोष प्रकोप, तीनों दोष युगपत् प्रकोपम आपद्यते। ठीक है, उसके बाद पीछे जाइए, एक चैप्टर पीछे जाइए, एक दो, उसमें श्लोका नंबर 25 में पेज नंबर 237, जस्ट वन पेज बैक, इन दैट 4th नंबर श्लोका इज देयर, जीर्णे अश्नीयात्, जीर्णे अश्नीयात् अजीर्णे ही भुंजमानम अव्यवहृतम आहार जातनम पूर्वस्य आहारस्य रस परिणामम, ये सभी होने के बाद सर्वान दोषान प्रकोपयति आशुहु। अगर आप खाना खाने, जो पहले खाना खाए हैं उसका पचने के पहले ही अगर आप फिर से खाना खाते हैं तो वो भी त्रिदोष प्रकोपक होता है। तो ये भी क्या है, परतंत्र दोष प्रकोप है। ठीक है, अतिमात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपकम, वो अब देखे हमने लास्ट श्लोका में। सो लाइक दैट। और एक श्लोक है, रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम, यू हैव सीन दैट, और उसमें फिर नहीं जाएंगे अभी। तो रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम, तो वहां पर भी वो परतंत्र दोष प्रकोप है। वहां पर अगर आप रस ज्यादा का मतलब रस वह स्रोत की दृष्टि होता है तो वो दूसरे उत्तरोत्तर स्रोतों को भी दृष्टि करेगा, तो व्याधि कुछ और ही उत्पन्न हो जाएगा वहां पर। तो ऐसे स्वतंत्र और परतंत्र, आई होप यू इट इज क्लियर, स्वतंत्र क्या है और परतंत्र क्या है। तो अभी आप ओपीडी में बैठे हैं, आप जो भी पेशेंट का हेतु निकालते हैं तो उस समय आपको ये सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर आपको आपके सामने पेशेंट बैठा है वो कंप्लेंट्स क्या कर रहा है
और वो कंप्लेंट्स का उसके हेतु से कुछ लेना देना है तो वो स्वतंत्र है। अंडरस्टैंड? अभी आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो समझिए कटिशूल का पेशेंट आया है, तो इफ द कटिशूला इज बिकॉज ऑफ द हेतुस विच इज इंडल्जिंग, फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट कोई खेत में काम करता है, दिन भर वो खेत में काम करता है, बहुत परिश्रम करता है, या कूली है जहाँ पर बहुत सारा वेट उठाता है। हाँ, इफ सच केसेस, अगर ऐसा पेशेंट है तो वो ऑब्वियसली वो स्वतंत्र दोष प्रकोप है, इजंट इट? तो उसका पर मतलब अपतर्पण की वजह से उसका वात प्रकोप हुआ है, उसको खाना टाइम से खाता नहीं है। हाँ, तो वो जो भी खाता है उसमें भी स्निग्ध, गुरु, हाँ, उष्ण, ऐसा होता नहीं। स्निग्धम अश्नियात, उष्णम अश्नियात, ये सब आहार का उसने फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका कटिशूल हो रहा है तो वातज है, आप निडर होके वात की चिकित्सा आप शुरू कर सकते हैं। यही पेशेंट, सेम कटिशूल का और एक पेशेंट आपके पास आया है, उसका हेतु आप निकालेंगे तो वो इंजीनियर है, कार में जाता है, कार में आता है, और जहां पर बैठता है वो भी कुशन है, आराम से बैठता है, सुबह उस 8:30-9 बजे उठता है, रात को देर से सोता है, और दिन में भी सोता रहता है, स्वीट्स खाता रहता है, काजू बादाम पिस्ता है उसके पास, खाता रहता है, दूध पीता है। अगर ऐसे हेतु आपको मिलते हैं, व्यायाम कभी नहीं किया, तो ये ऐसे पेशेंट को आप डायरेक्टली, इफ यू स्टार्ट द स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, तो ऐसे पेशेंट का आप मतलब वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। क्यों? उसका पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये संतर्पणोत्थ व्याधि है, ये स्वतंत्र वात प्रकोप नहीं है, वहां पर उसके कफावृत वात प्रकोप है। श्लेष्मावृत रहेगा, मांसावृत रहेगा, मेदावृत रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास आएगा तो उसकी चिकित्सा आप स्नेह से शुरू नहीं करेंगे, उसमें रूक्ष से शुरू करेंगे। आप वालुका स्वेद करिए, आप परिषेक करिए, धान्याम्ल धारा करिए, वालुका स्वेद हुआ। ऐसे कंडीशन से, ऐसे चिकित्सा से आप शुरू करिए। हो सकता है तो कुछ बस्ती दीजिए, अगर बस्ती देना है तो आप उसमें क्षार बस्ती, तीक्ष्ण बस्ती, उष्ण बस्ती दे सकते हैं। हाँ, ऐसे बस्तियों का प्रयोग करिए। उसके बाद आप फिर नॉर्मल वात शामक और अनुवासन पर आइए। अनुवासन में भी उष्ण तीक्ष्ण तैल, जैसे बृहस्पैंदवादी तैल है, ऐसे अनुवासन आप चॉइस करना है। तो ये परतंत्र कटिशूल था। यही पेशेंट आपके पास, कुछ ऐसे पेशेंट आएंगे डायबिटीज मेलिटस के, उसमें आपको पेशेंट प्रेजेंट क्या करेगा? सिम्टम्स, पैर में जलन है, आंखों में जलन है, इजंट इट? बर्निंग फूड्स, डायबिटीज इज वेरी हाई, शूट अप। तो उसमें आप हेतु देखेंगे। हेतु के बिना आप आयुर्वेद की चिकित्सा मत करिए, क्योंकि हेतु बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कुछ कारण है, कार्य है तो उसके लिए कुछ कारण है, कार्य कारण सिद्धांत है। इसी तरह अगर आपका पेशेंट पैरों में जलन लेकर आएगा तो डायरेक्टली पित्त शामक चिकित्सा की तरफ दौड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं दौड़ना है, आप डायरेक्टली शुरू हो गए अभिपतिकर, कामदुदा, मुक्ता, सुक्ति, ऐसे आपकी चिकित्सा नहीं होना चाहिए। उसमें हेतु अगर कफज है, हेतु अगर वो प्रमेह के हेतु डायरेक्टली जो सूत्र स्थान में बताया है, अभी हमने जो डिस्कस किया, ऐसे हेतु मिलते हैं तो आपको पाचन, दीपन, इस ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। ये करने से उसका पैरों में जलन भी कम हो जाएगा अपने आप। उसके लिए आपको पित्त की चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था क्लिनिक में, उसका फास्टिंग शुगर था 250, पोस्ट पंडियल था 420, सॉरी 350, 420। बिफोर फूड इट वाज 350, आफ्टर फूड इट वाज 420। तो ऐसे अगर घबरा जाएगा एकदम से, वो एलोपैथिक में गया तो डॉक्टर्स बोले कि आपको एडमिट करना है और आईसीयू में रखना है, और मॉनिटर, आईसीयू में नहीं, मॉनिटर करना है आपको, और इंसुलिन वगैरह देके 1-2 दिन में मॉनिटर करके बाद में भेजेंगे। वो घबरा गया, एकदम से आया, और जब हमारे पास बैठा तो जब हेतु निकाले उसमें देखे वो लॉकडाउन से घर पे है, घर पे बैठा है, बाहर ज्यादा काम, घूमना फिरना नहीं है, और घर में बहुत सारे टेंशन है। तो ये सारे हेतु थे। तो उसकी चिकित्सा हमने सिंपल दीपन पाचन से शुरू किया, और उसको 1 हफ्ते का मैंने उपवास बताया।
उपवास मीन्स आप जो एकादशी को करते हैं साबूदाना खा के, वो वाला उपवास नहीं। यहाँ पर उपवास था उसका, जब भी भूख लगता है तो थोड़ा गंजी पी लेना, और शाम को थोड़ा खिचड़ी दलिया ऐसा कुछ खाना खाना था, और दीपन पाचन औषधि रखे थे हमने। तो 1 हफ्ते बाद उसका फास्टिंग शुगर वाज 150, पोस्ट प्randial वाज अराउंड 280। फिर नॉर्मल नहीं था अभी भी, मुझे पता है, बट देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज सिम्टम्स विच ही वाज फीलिंग, बर्निंग फूड्स, आंखों में जलन, बॉडी का हैवीनेस, ये सारे लक्षण उसके कम थे। तो यहाँ पर अगर मैं उसका पैर जल रहे बोल के मैं पित्त का चिकित्सा करने के लिए दौड़ पड़ता तो रिजल्ट नहीं आता, और वो पेशेंट एडमिट ही हो जाता फिर, क्योंकि अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसे कुछ हो जाता तो आयुर्वेद का भी नाम खराब हो जाता। इसलिए ये स्वतंत्र परतंत्र का अब देखने में आपको लगता है इसमें क्या है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। मैं भी ऐसा ही क्लास में सुनता नहीं था, लेकिन बाद में प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंस इसके दिखे। और एक एग्जांपल, जैसे आपका आम्ल पित्त का मैंने बताया, आम्ल पित्त है करके आप चिकित्सा पित्त की करने लगते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। उसमें आप देखिए खाने के बाद षडदर्ण देखे, चित्रकादि देखे, हाँ, तो किसी किसी के पेशेंट में चित्रकादि से और बढ़ जाता है, लवण भास्कर है, आजमोद आदि है, हाँ, हिंगवाष्टक है। ऐसी चिकित्सा अगर करके आप देख सकते हैं, उसका हेतु अगर कफच है तो हिंगवाष्टक, आजमोद आदि, वैश्वानर, इनसे उसका लक्षण बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो ये परतंत्र दोष प्रकोप की चिकित्सा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी गेट आर परतंत्र ओनली इन द टुडेज प्रैक्टिस। स्वतंत्र वात प्रकोप के हेतु नहीं मिलते आपको। स्वतंत्र वात प्रकोप के हेतु कैसे होते हैं, अब समझिए एक पेशेंट ऐसे था, वो रात में ठंडी में बहुत चिल्ड था, ठंडी के दिन वो ठंडी में वहां से 50-60 किलोमीटर गुलबर्गा से यहाँ इधर तक आ रहा था। तो वो आया, वो खाना अच्छे से नहीं खाया था उसके पहले दिन, और दिन भर दौड़ धूप कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव था तो उसके काम बहुत थे। ऐसे करने लगा और एकदम से आके उसका एक पैर जकड़ गया पूरा। वो फिर ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह प्रिस्क्राइब किए, लेकिन कम नहीं हुआ। फिर आया, पेन किलर वगैरह डाइक्लोफेनाक ले रहा था, ट्रामाडोल ले रहा था, फिर भी उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था। 2 दिन देखा उसने, उसके बाद ऐसे ही मुझे फोन पे कांटेक्ट किया। मैंने बोला आओ मिलो एक बार, देखते हैं, ऐसे हम पेन हो रहा है तो डाइक्लोफेनाक ऐसे नहीं होता आयुर्वेद, आप आइए एक बार। तो हमने जब देखा तो उसका हेतु निकाले, तो 4-5 दिन से वो अच्छे से खाना खाया नहीं है, और उसका नींद अच्छे से हुआ नहीं है, क्योंकि वो मंथ एंड था उसका, तो बहुत सारा प्रेशर था उसको सेल्स करने का। वो होने के बाद लास्ट एट द एंड ऑफ द 4th और 5th डे ये हो गया। और ठंडी के दिन थे, बहुत मतलब शीत विहार, और विषमासन, और धूप में घूम रहा था। ये सारे जो उसका अनशन, विषमासन, जो भी आप कह सकते हैं, ये सारे हेतु वातज थे, और व्याधि भी वातज ही था। एकदम से पैर में बहुत पेन था, तो हम उसको सिर्फ डायरेक्टली स्नेहन और स्वेदन किए। 2 दिन के स्नेहन और स्वेदन से ही वो आराम हो गया। उसके बाद मैंने एक अनुवासन दिया होगा शायद, उससे पूरा उसका पेन कम हो गया था। तो ये स्वतंत्र दोष प्रकोप की चिकित्सा थी। यही पेशेंट अगर मेरे पास आता और वो ये हिस्ट्री नहीं देता, तो ऑब्वियसली मेरा डायग्नोसिस जो था वो कफ वातज ही होता था, ना कि वातज होता। अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डिसीजेस, whether it is a स्वतंत्र और परतंत्र, सारे व्याधियों के निदान इसी पे करना है। वात प्रकोप, इसीलिए मैं बोला ना फर्स्ट क्लास में, मैंने कहा कि यू हैव टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, आपके पास केस शीट करेक्ट होना चाहिए, और सुबह से लेके रात को सोते वक्त तक उसका हिस्ट्री निकलना चाहिए। 10 पहले आपको आधा घंटा लगेगा, बाद में जब अभी 1-2-3 साल हो गए मुझे, तो उसका निदान फट से हो जाता है। 5 मिनट में हम हेतु निकाल सकते हैं। स्टार्ट विथ आस्किंग लाइक एट व्हाट टाइम यू गेट अप, वहां से लेके उसको बोलिए, पहले ही बोलिए कि मुझे आपके रूटीन देखना है कि आपका कहाँ पर गलती हो रहा है। तो स्टार्ट विथ आस्किंग एट व्हाट टाइम यू गेट अप। ये धर्माधिकारी सर का मेथड है, मेरा कुछ भी नहीं। सर ऐसे बताते थे, हमने ऐसे करना शुरू किया तो हमें रिजल्ट मिलने लगे। तो सुबह कितने बजे उठता है, उठते ही क्या करता है, दूध पीता है क्या, पानी पीता है क्या, पानी पीता है तो कितना पीता है, कफ काल में कफ स्वरूपी जल का वो
बहुत मात्रा में पान कर रहा है क्योंकि उसको किसी बाबा ने बताया है, कोई टीवी पे देखा है या यूट्यूब में देखा है, तो फ्लश करना है उसको पेट, तो मैंने बताया बहुत बार। तो ऐसे अगर हेतु करता रहता है बहुत बार, अगर इतना पानी ज्यादा पीता है तो वो अग्निमांद का हेतु होता है। अग्निमांद से सारे दोषों का फिर प्रकोप होने लगता है। वो है क्या, ब्रेकफास्ट कितने बजे करता है, 9 बजे वो भरपेट खाना खा के जा रहा है, तो उसके अग्नि है क्या 9 बजे। गृहिणी में देखिए आप, गृहिणी चिकित्सा में बताया ना, एक श्लोक है, प्रातराशे तो अजीर्णेपि सायमाशो न दुष्यति, isn't it? You can see in the गृहिणी चिकित्सा, प्रातराशे तो अजीर्णेपि सायमाशो न दुष्यति, मतलब सुबह का खाया हुआ आहार जीर्ण नहीं हुआ है और आप शाम को फिर से खा रहे हैं, तो वो दोष प्रकोपक नहीं है। इसको विपर्य तंत्र आप लगाइए तो क्या हो जाएगा, सायमाशे तो अजीर्णेपि प्रातराशो ही दुष्यति, isn't it? अगर शाम का खाया हुआ खाना सुबह तक भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है आपका और आप फिर से खा रहे हैं, तो वो दोष दुष्टि करेगा ही। तो प्रातराशे तो अजीर्णेपि सायमाशो न दुष्यति, उसका विपर्य होगा सायमाशे तो अजीर्णेपि प्रातराशो ही दुष्यति। तो रात का खाना हुआ खाना ही नहीं डाइजेस्ट हुआ है और वो फिर से दिन में सुबह सुबह ही खा रहा है, उसका अग्नि वृद्धि नहीं है, तो वो दोष दुष्टि करेगा और वात प्रकोप, कफ प्रकोप, पित्त प्रकोप सब कुछ करेगा। यही आम्ल पित्त करेगा, यही गुल्म करेगा, यही कटिशूल करेगा, यही शिरशूल करेगा, माइग्रेन करेगा। ऐसा कोई व्याधि नहीं है जो ये नहीं करेगा। अंडरस्टैंड लाइक दैट। ये आम, ये अग्निमांद्य, यही आम दोष सारे व्याधियों का जनक है, ये माँ है सबका। ठीक है, तो सुबह सुबह का नाश्ता अगर आपको करना है वो लेट से करने के लिए बोलिए, जब उसका पेट पूरा सा साफ हो जाए, पूरा उसको भूख लगने लगे। इन अष्टांग हृदय दे हैव टोल्ड ना, फर्स्ट श्लोक ओनली, जीर्णा जीर्ण को देखना है आपको। ब्राह्मणी मुहूर्त में उत्तिष्ठ होके क्या करना है, जीर्णा जीर्ण का विचार करना है, जीर्ण हुआ है अजीर्ण हुआ है, अभी कितना टाइम लग सकता है, इसके हिसाब से आपको नेक्स्ट का योजन करना है उस पेशेंट का। उसके बाद का ब्रेकफास्ट होने के बाद वो फिर क्या कर रहा है, बाइक पे ट्रैवल कर रहा है क्या, तो खाना खा के बाइक पे बैठेगा, विहार करेगा, तो क्या हो जाएगा, गुल्म की संप्राप्ति है वो। तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए पीठ में भी दर्द हो रहा है। तो ऐसे हेतु मिलते हैं क्या, दोपहर में सोता है क्या, दिन भर में कुछ ना कुछ अध्ययन कर रहा है क्या। किसी किसी के घर में ऐसे होता है, हॉल में ही रखे रहता है एक पानी का बॉटल, मैंने देखा, इधर से जाते हैं पानी पीते हैं, वापस आते हुए फिर से पानी पीते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने बोला हाइड्रेटेड रहना है आपको, पानी ज्यादा पीना है। तो ऐसे अत्यंबुपानान विषमाशनश्च संधारणा स्वप्न विपर्यास हेतु है, अत्यंबुपान करते रहते हैं तो वो भी हेतु है। यही अजीर्ण का हेतु भी हो सकता है। जब तक बॉडी डिमांड नहीं करता तब तक आपको पानी नहीं देना है। देयर इज अ सॉफ्टवेयर राइट इन आवर बॉडी, वो सॉफ्टवेयर पूछेगा आपको, जब जो चाहिए वो पूछेगा, तब आपको देना है। तो लाइक दैट सारे हेतुओं को आपको देख के उसकी चिकित्सा करना चाहिए। वो हेतु निकालने के लिए आपको पेशेंट का दिनचर्या को देखना पड़ेगा, सुबह से लेके शाम तक वो क्या क्या कर रहा है। शाम को फिर से चाय पिएगा, उसके बाद फिर बिस्किट ब्रेड खाएगा, 2 घंटे बाद फिर से खाना खाएगा, खाना खा के फिर टीवी देखेगा बैठ के, उसके बाद फिर सो जाएगा। तो ये सारे हेतु नहीं, हितकर हेतु नहीं, ये अहितकर है। तो जो भी अहितकर है अपने शरीर के लिए वो हेतु है, इतना आप समझ लीजिए। अब हेतु कैसे निकालेंगे, वो कोई ब्रह्म विद्या नहीं है उसमें। जो अहितकर है वो ही हेतु है, जो शरीर के लिए हितकर है वो हेतु नहीं है। तो यही हेतु अगर वो पेशेंट कंटिन्यूअसली मतलब एक्सरसाइज करता है, खान पान अच्छा है उसका, जो भी अगर विरुद्धम विततम भवेत, isn't it? there is a श्लोका, अगर ऐसे पेशेंट है, नित्य व्यायामशील है, नित्य अभ्यंगशील है, मतलब काम करता रहता है, तो उसको विरुद्ध भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसका। लेकिन उतना काम करेगा कौन, आजकल सारे संतर्पण के हेतु मिलते हैं। So like that, स्वतंत्र एंड परतंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये हम आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से ही हेतु निकालना चाहिए, आयुर्वेद की दृष्टि से ही हमें संप्राप्ति को भंग करना चाहिए। तो इतना बोलते हुए मैं अपने यहाँ पर वक्तव्य का विराम देता हूँ। अगर कोई डाउट है तो हम विल डिस्कस।